Good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home. Children, as I always suggest you, so today also I am suggesting you to work very hard. ठीक है? Make a proper timetable, make a proper time management and work accordingly. Class 11. It's a very high time when you all have to focus toward your studies. Children, the topic which I am going to teach you about today is attention. Attention. What is the meaning of attention, children? Attention क्या है? When attention is basically focusing on one stimulus out of many stimulus. जब आप बहुत सारे स्टिमुलस में से किसी एक स्टिमुलस पे फोकस करते हो तो उसे हम अटेंशन कहते हैं. It is also accompanied by your needs. Out of many stimulus means in our environment, children, there are so many stimulus. There are so many objects, there are so many persons, there are so many events, there are so many things. And out of so many things, when you attend a particular stimulus, so you are doing an attention. For example, right now, you all are watching this video, so it doesn't mean that no other stimulus isn't surrounding to you. You are surrounded by a numerous stimulus, but if you are watching the video, so you are attending this particular stimulus. So this is known as attention. Attention means focusing on one stimulus out of many stimulus. बहुत सारे स्टिमुलस में से अगर हम किसी एक स्टिमुलस पे फोकस करते हैं तो इसे हम अटेंशन कहते हैं. लाइक इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं. टीचर्स वर प्रेजेंट देयर who are roaming here and there. So many instructions were provided to the children, but we attend to our examination, we are focusing toward our paper. So what is that? We are attending one stimulus out of many stimulus. So it is our attention. ये हमारा attention है. अटेंशन के कुछ प्रोसेसेस होते हैं. व्हाट आर द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन द अटेंशन? लाइक देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज ऑल्सो आर देयर by the help of which you can find out the people's attention. That yes, it is true that attention means we attend one stimulus at one point of time and ignore the other stimulus. It can be proven, like if a teacher asks to the child to see and or to find out the yellow color from your surrounding. So you will find out that children used to see only the yellow color and their total focus is on the yellow color. They forget about the rest of the other color which are available in their surrounding. जो उनके सराउंडिंग में अवेलेबल है फिर भी वो उसे इग्नोर कर देंगे. उनका पूरा फोकस किस पे रहेगा? येलो कलर में. सो इस तरह के कुछ एक्टिविटी हैं जिनसे ये प्रूवन होता है कि अटेंशन क्या होता है. हम लोग बहुत सारे स्टिमुलस में से अगर किसी एक स्टिमुलस पे फोकस कर रहे हैं तो इट इज अवर अटेंशन. So children, I hope you understand about the meaning of attention. Attention means focusing on one stimulus out of many stimulus or attending one stimulus out of many stimulus.
बहुत सारे स्टिमुलस हैं बट आप उनमें से सिर्फ एक ही स्टिमुलस को अटेंड कर रहे हो, तो दैट इज़ योर अटेंशन एंड दैट इज नोन टू बी एज सेलेक्टिव अटेंशन। अटेंशन के भी दो इम्पॉर्टेंट टाइप होते हैं। द वन इज सेलेक्टिव अटेंशन एंड अनदर वन इज सस्टेन अटेंशन। बहुत सारे स्टिमुलस में से अगर एक स्टिमुलस को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज योर सेलेक्टिव अटेंशन, एंड अगर किसी एक स्टिमुलस पे आप बहुत लंबे समय तक फोकस कर रहे हो तो दैट इज योर सस्टेन अटेंशन। सो सेलेक्टिव अटेंशन मीन फोकसिंग ऑन वन स्टिमुलस, attending one stimulus out of many stimulus, and sustained attention is focusing on one stimulus for a longer period of time. Just like during the examination, you have a sustained attention. You maintain your attention for the 3 hours in your examination paper. So that is your sustained attention. The sustained attention is also known as vigilance. इसे हम लोग vigilance भी कहते हैं. It is also known as vigilance. ठीक है, vigilance कहा जाता है sustained attention को. So I hope you understand the difference between selective attention and sustained attention. Selective attention means focusing on one stimulus, attending one stimulus out of many stimulus, and sustained attention means focusing on one stimulus for a longer period of time. अटेंशन में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है, ये आपने पढ़ लिया। इनके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं अटेंशन के, जैसे कि डिवाइडेड अटेंशन और स्पैन ऑफ अटेंशन। इनके भी नाम आपने सुने होंगे, डिवाइडेड अटेंशन और स्पैन ऑफ अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन क्या है? जब आप 2 स्टिमुलस को साथ में अटेंड कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन नॉट ओनली वन स्टिमुलस, यू आर फोकसिंग ऑन 2 स्टिमुलस एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम। आप एक ही समय पे 2 स्टिमुलस को अटेंड कर रहे हो, लाइक यू आर ऑल्सो ड्राइविंग अ बाईसाइकिल एंड यू आर टॉकिंग ऑन द फोन, यू आर ऑल्सो डूइंग योर होमवर्क एंड लिसनिंग द म्यूजिक, you are reading the book and you are cooking as well as you are listening the music. When you are attending and when you are doing 2 stimulus at a one point of time, so that is your divided attention. Divided attention में ये देखा गया है कि हम divided attention तभी कर पाते हैं जब कोई एक प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक होता है, यानी कोई उसमें से जो 2 स्टिमुलस है या 2 एक्शन है, 2 बिहेवियर है, तो ये 2 बिहेवियर में से कोई एक बिहेवियर होगा जो ऑटोमेटिक होगा, जिसपे आप स्किल्ड हो गए, मास्टर हो गए, ऑटोमेटिकली आप उसे कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए इट डजंट रिक्वायर सो मच एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट उसमें नहीं लग रहा है। अंडरस्टूड? सो इसीलिए डिवाइडेड अटेंशन हो जाएगा। अदरवाइज अगर दोनों में ही इक्वल एफर्ट लगेगा तो आप डिवाइडेड अटेंशन नहीं कर पाओगे। तो डिवाइडेड अटेंशन के लिए ज़रूरी है कि एक जो टास्क है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होना चाहिए और उसमें एफर्ट कम लगता है। सो इनके अलावा कुछ प्रोसेस हैं अटेंशन के। ठीक है, हमने टाइप्स पढ़ लिया। एक और टाइप था जो कि हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन क्या होता है कि हाउ मच स्टिमुलस यू विल अटेंड इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उसमें आप कितने स्टिमुलस को अटेंड कर सकते हो। सो दैट शोज यू स्पैन ऑफ अटेंशन। इट हैज़ बीन फाउंड दैट हमारा जो स्पैन ऑफ अटेंशन होता है वो 5 + -2 का होता है, यानी 7 to 9 तक के डिजिट्स तक के ही हमारे अटेंशन स्पैन होते हैं। इसके बाद अगर डिजिट्स इंक्रीज होते हैं
तो हमारा अटेंशन स्पैन डिक्रीज होने लगता है। मीन्स 9 के बाद अगर डिजिट्स इंक्रीज होते हैं तो हमारे अटेंशन स्पैन डिक्रीज होने लगता है। हमारा अटेंशन स्पैन जो है ये 7 to 9 तक के आइटम्स या नंबर्स का होता है, उससे ज़्यादा वो बढ़ता है तो हमारे अटेंशन स्पैन में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल दिस वन। नाउ एक एग्जाम्पल है अटेंशन स्पैन का, जिसे अगर मैं आपको कोई स्लाइड दिखाऊं और वो स्लाइड्स यूजली हाफ सेकेंड पे चेंज हो जा रहे हैं, जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट चेंज हो रहे हैं, फिर स्लाइड्स दिखाने के बाद मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द थिंग्स यू हैव सीन इन द स्लाइड, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने स्लाइड्स में देख ली और या कितने तरीके की स्लाइड्स आपने देखी, द मोर यू रिकॉल द मोर यू विल रिप्लाई, द मोर यू विल रेस्पॉन्ड, इट मीन्स द मोर विल बी योर अटेंशन स्पैन। आपका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है, ठीक है, इट शोज दैट योर अटेंशन स्पैन इज गुड। जितना ज़्यादा आप ने वो जो स्लाइड्स के पिक्चर्स है जितना ज़्यादा आपने कैच किया होगा उतना ही वो शो या रिप्रेजेंट होगा कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है। सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ अटेंशन: selective attention, sustained attention, divided attention and span of attention. Now I am going to discuss with you some of the process जो कि कभी I am telling you so many times. There are three main processes involved in attention. First is alertness. Second is concentration. And third is search. ये थ्री प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं अटेंशन के साथ: अलर्टनेस, कंसंट्रेशन एंड सर्च। ठीक है, when a teacher asks to the child to find out the yellow color from your surrounding, the student will become alert. फिर वो alert हो जाते हैं, ढूंढने लगते हैं। ओके, alert पहले तो alert, then they start concentrating. Okay, on which color? Only the yellow color. They start concentrating on the yellow color. Then they search for the yellow color in their surrounding. So these three processes are involved in the terms of the attention. Similarly, it can be applied on any of the thing. For example, if you are hungry, so you become alert. Your body will become alert. Your mind will become alert that you are hungry. So you concentrate on that only. Your total focus is there only. आपका पूरा focus उसी में हो जाता है. And search, what you will search? You search for the food stores from where you can get the food. So there are so many examples which you are able to see in your daily life also. Like in the examination time also, when the copies and paper was given to you, your mind and body will become alert. आप alert हो जाते हो और आप जैसे ही alert होते हो आप concentrated हो जाते हो. You very concentratedly read each one of the questions and try to find out the answer. And try to find out means you are in the third stage, which is the search. Now you will search in your memory system, whatever the things you have retained, okay, whatever the things you have encoded and stored, and you will try to retrieve it. So this is the three processes which are involved in attention: alertness, concentration and search. So children, I hope you all are understanding about the attention. So what is attention? What are the types of attention? And the most importantly, what are the three processes involved in attention? Now some theories of selective attention, or you can say that some of the,
obviously some theories of selective attention was there which you all have to discuss. So there were three main theories were discussed in your syllabus. The first one is the filter theory. The first one is the filter theory. Filter theory ब्रॉडबैंड की थी. इट इज द नेम ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट ब्रॉडबैंड, इन्होंने दिया था. ओके, ये किसकी थ्योरी थी? ब्रॉडबैंड की थ्योरी थी. ब्रॉडबैंड ने इसे दिया था. व्हाट दिस थ्योरी ऑफ अटेंशन मीन्स अबाउट, इस थ्योरी का क्या मतलब है? थ्योरी का क्या मीनिंग है? फिल्टर थ्योरी नाम से पता चल रहा है, तो यानी समथिंग इज फिल्टर. तो ये थ्योरी ये कहती है कि हमारा जो मेमोरी सिस्टम है या हमारा जो अटेंशन सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर देता है. फिल्टर करने के मतलब बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं हमारे सराउंडिंग में और फिर वो सारे स्टिमुलस को फिल्टर कर देता है. सिर्फ हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट को अटेंड कर पाते हैं. इस थ्योरी का कहना था एक बॉटल नेक सिचुएशन हो जाती है, जैसे बॉटल नेक होती है तो इसमें से सारे स्टिमुलर जो होते हैं फिल्टर हो जाते हैं और सिर्फ एक ही स्टिमुलर जिसको हमें अटेंड करना है सिर्फ वही उसमें जाता है. ठीक है, तो ये था फिल्टर थ्योरी. इसको जस्ट अपोज किया फिल्टर अटेन्यूएशन थ्योरी. फिल्टर अटेन्यूएशन थ्योरी ने इसे अपोज किया जो कि एनी ट्रेजमैन का था. फिल्टर अटेन्यूएशन थ्योरी ये अपोज किया था, किसने किया था? फिल्टर अटेन्यूएशन थ्योरी. ये ट्रेजमैन की थ्योरी थी. ट्रेजमैन इज द नेम ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट. ट्रेजमैन जो है साइकोलॉजिस्ट का ही नाम है. इनकी थ्योरी थी. अटेन्यूएशन का मतलब होता है, द वर्ड अटेन्यूएशन मीन्स वीकेंड. ठीक है, वीकेंड. वीकेंड मतलब ये जो ट्रेजमैन थे उन्होंने कहा, उन्होंने ब्रॉडबैंड की थ्योरी को डिनाई किया. उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टिमुलस में से सारे स्टिमुलस बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ एक ही स्टिमुलस को हम एट अ वन पॉइंट पे अटेंड करते हैं. उन्होंने इस कंसेप्ट को, जो ब्रॉडबैंड का ये कंसेप्ट था, उसको उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया. उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि पूरी तरह से सारे स्टिमुलस चले जाते हैं. हाँ, ये होता है कि द वे इज वीकेंड. वे जो होता है वो वीकेंड हो जाता है. तो दैट इज वाई दिस थ्योरी इज नोन एज फिल्टर अटेन्यूएशन. वो वीक कर देता है, बट ये नहीं होता कि वो पूरी तरह से कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है. कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं करता वो, उसको उस वर्क को खाली इट इज़ ओनली वीकेंड. इसीलिए ऐसा होता है जैसे आप एग्जाम में यू आर वेरी मच विजिलेंट, यू हैव फोकस योर अटेंशन for a longer period of time in your examination, but still when anyone call your name, if anyone call your name that Sonam, so you will turn your head and you will just see who has called your name. So ये इससे उन्होंने प्रूव किया कि ऐसा नहीं है कि हम लोग एक पॉइंट पे एक ही स्टिमुलस अटेंड करते हैं. अगर ऐसा होता तो पर्सन उस नाम का रिस्पॉन्ड नहीं करता, यानी वो और भी स्टिमुलस को अटेंड कर रहा है, पर जो जिस पे वो फोकस कर रहा है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है और बाकी चीज़ों पे जिस पे वो फोकस यानी अलर्ट नहीं है, कंसंट्रेट नहीं है, तो वो जो है वो वीक हो रहे हैं. बट वो ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली सराउंडिंग से चले गए हैं या वो ब्लॉक्ड हो रहे हैं. वो वीक हो जाते हैं, दैट बिकम वीक, बट दैट इज नॉट कम्प्लीटली blocked. So I hope it is clear to you this one theory, filter attenuation theory. We have discussed the filter theory and second one come the filter attenuation theory. Now the third theory is the multimode theory of attention. The third theory is multimode theory of attention, which is given by Johnston and Hess. मल्टीमोड. ठीक है, मल्टीमोड थ्योरी ऑफ अटेंशन ये दिया था जॉनस्टन और हिच ने. मल्टीमोड थ्योरी ऑफ अटेंशन गिवन बाय
जॉन्स्टन, ठीक है, जॉन्स्टन, और ये हिंज का कंसेप्ट है। इस थ्योरी ने बेसिकली प्रोसेसिंग की बात कही। ये थ्योरी जो है वो प्रोसेसिंग पे फोकस करता है कि जितना हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं उतना ही बेटर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मल्टी मोड यानी अटेंशन के बहुत सारे मोड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बॉटलनेक सिचुएशन बने या कुछ चीज़ें वीक होती है। ये लोग का मेन फोकस प्रोसेसिंग पे था। So in this way we have discussed about the theories of selective attention also. The topic which is lastly left in this one, what are the factors which influence the selective attention and what are the factors which influence the sustained attention. Selective attention और sustained attention को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अटेंशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बी अटेंटिव, ठीक है, बी वेरी अलर्ट, बी वेरी कंसंट्रेटेड टुवर्ड योर दिस पर्टिकुलर स्टिमुलस। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन, सबसे पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सेलेक्टिव अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। सो फैक्टर्स affecting selective attention। Factors affecting selective attention। So what are the factors which are affecting the selective attention? So there are two factors. The one is internal factor and another one is external factor. One is internal factor and second one is external factor. एक इंटरनल फैक्टर होता है और एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर की अगर हम बात करें, कुछ बाहर के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड द स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक। स्टिमुलस की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे हमारा अटेंशन जो है वो सेलेक्टिव होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर लाइक आपका जो स्टिमुलस है उसकी इंटेंसिटी कैसी है, ठीक है, साउंड उसका कैसा है और उसकी ब्राइटनेस कैसी है। ये देखा गया है कि अगर कोई बहुत ही ब्राइटेड ऑब्जेक्ट रहता है तो इट कैचेस अवर अटेंशन मोर देन द डल ऑब्जेक्ट्स, ओके। सम ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कुछ ग्लिटरिंग के हैं तो वो हमारा अटेंशन ज़्यादा जल्दी कैच करते हैं, हाइलाइट्स होते हैं, ओके। कलर, अगर कोई ऐसा कलर है जो कि बहुत डोमिनेंट कलर है, बहुत हाईलाइटेड और ब्राइट कलर है, तो वो हमारा अटेंशन ज़्यादा कैच करता है इन कंपैरिजन टू दी अदर कलर्स। इसी तरीके से बहुत सारे अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ मीन्स स्टिमुलस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हमारा सेलेक्टिव अटेंशन होता है, ओके। इंटरनल फैक्टर्स में आता है मोटिवेशनल और कॉग्निटिव फैक्टर, ये दोनों ही इसी में ही आते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर एंड कॉग्निटिव फैक्टर, ये बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर यानी स्टिमुलस का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उसकी इंटेंसिटी। जैसे कोई आवाज़ जो है अगर लाउड है तो वो जल्दी आपका अटेंशन, इट क्विकली कैच योर अटेंशन इन कंपैरिजन टू द वॉइस विच इज़ वेरी लो, ओके। सो इस तरीके से कुछ स्टिमुलस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से आप सेलेक्टिव अटेंशन करते हो, और इंटरनल फैक्टर भी होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं सेलेक्टिव अटेंशन को। मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं यानी आप कितना मेंटली सेट हो, कितना मेंटल प्रिपेयर्डनेस है, दैट ऑल्सो डिटरमाइन द सेलेक्टिव अटेंशन। मेंटल प्रिपेयर्डनेस कितना, आप अलर्टेड हो या नहीं हो, ये भी डिटरमाइन कर। आप अलर्ट ही नहीं होगे तो अटेंशन ऑब्वियसली नहीं होगा,
तो मोटिवेशनल फैक्टर हो गया। देन आपके और भी मोटिवेशन यानी आपका नीड्स क्या है, नीड्स के अकॉर्डिंग भी हमारा अटेंशन होता है। लाइक जो अगर कोई ऐसी बायोलॉजिकल नीड है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर हंग्री, तो यू हैव एन अटेंशन टुवर्ड द रेस्टोरेंट्स एंड होटल, so from where you get the food. If you are thirsty, so you have an attention toward any water store, from where you get the water. So motivational factor means your need also govern your attention, ठीक है, and as well as your mental set, how much you are alert. Cognitive factors भी होते हैं। Cognitive factors means how much you are concentrated, how much you are focused. So ये सारी चीज़ें भी आपके सेलेक्टिव अटेंशन में मदद करती हैं। इनके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सस्टेन अटेंशन को भी डिटरमाइन करते हैं। ये फैक्टर्स सेलेक्टिव अटेंशन को डिटरमाइन कर रहे हैं। सिमिलरली कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सस्टेन अटेंशन को डिटरमाइन करते हैं। तो ये हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स which are affecting the sustained attention. What are the factors which are affecting the sustained attention? What are the factors affecting the सस्टेन अटेंशन? कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके अटेंशन को बनाए रखने में मदद करते हैं? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, फर्स्ट इसमें आएगा आपका क्लैरिटी ऑफ द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई जितना क्लियर होगा उतना ही आप सस्टेन अटेंशन कर सकते हो। क्लैरिटी ऑफ द स्टिमुलाई, अगर स्टिमुलाई ब्लर है या किसी भी तरीके से स्टिमुलाई अनक्लियर है, आपको दिख नहीं रहा है, तो सस्टेन अटेंशन बना के रखना मुश्किल है, ठीक है। तो क्लैरिटी ऑफ द स्टिमुलाई प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द सस्टेन अटेंशन। देन टेम्पोरल अनसर्टेनिटी, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है सस्टेन अटेंशन करने में। टेम्पोरल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड। टेम्पोरल स्टेबिलिटी मीन्स होता है basically temporal word is related to the time basically interval of time पे आएगा कोई भी चीज़ आपके सामने, तो आपको अपने अटेंशन को सस्टेन करके रखना मुश्किल होता है, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी रहेगी, कंटिन्यूस आपके सामने कोई भी चीज़ विजिबल है, तो फिर आप उसको अटेंशन सस्टेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जामिनेशन में भी 3 आवर्स इसलिए कर पाते हो क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं कॉन्टिन्यूसली आपके मॉनिटर पे आ रहे हैं। वो अच्छा कुछ क्वेश्चंस आए, फिर कुछ क्वेश्चन 1 आवर्स के बाद आएंगे, तो आप सस्टेन अटेंशन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये सस्टेन अटेंशन बना के रखने के लिए टेम्पोरल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। उसी तरह स्पेशल अनसर्टेनिटी ये भी एक है। स्पेशल अनसर्टेनिटी होगी तो भी प्रॉब्लम होगी। लाइक स्पेशल अनसर्टेनिटी मीन्स इफ समथिंग इज एट द फिक्स्ड स्पेस एंड इफ समथिंग इज मूविंग। तो ये देखा गया है कि जो एक फिक्स्ड स्पेस में रहता है उस पर अटेंशन बना के रखना ज़्यादा ईजी होता है इन कंपैरिजन टू द थिंग विच आर मूविंग। मीन्स एक है जो मूव कर रहा है और एक है जो कांस्टेंट है। तो जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं उस पर हमारा अटेंशन लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है इन कंपैरिजन टू द थिंग विच आर मूविंग। So I hope you all understand about what are the factors which are influencing the sustained attention. Like temporal stability होनी चाहिए, stimuli की clarity होनी चाहिए, spatial certainty होनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, मूविंग ना रहे। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमने आज टॉपिक अटेंशन को पढ़ा। अटेंशन क्या होती है, अटेंशन की मीनिंग, अटेंशन द प्रोसेसेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अटेंशन, थ्योरी, एज वेल एज कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सेलेक्टिव अटेंशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सस्टेन अटेंशन।
So I just suggest you all children, keep revisions going on, make your notes properly and work very hard. Still if you find any of the doubt in this topic, कोई भी topic आपको नहीं भी समझ में आया, you will ask in the classroom. Thank you so much for carefully observing this one.